Good morning students. Today I am going to teach you the first chapter of your approach portion. As Seema ma'am told you that she had given you question answer and exercises of this chapter, I am going to explain this chapter. The name of the chapter is the Enchanted Pool. It is written by Chakravarti Rajgopalachari. Chakravarti Rajgopalachari was born on 10 December 1878. He is informally called Rajaji RCR, was an Indian lawyer, freedom fighter, politician and writer. He was the founder of the Swatantra Party. He was the first man to receive India's highest civilian award, the Bharat Ratna. He was also nicknamed as Marco of Sabir. He wrote an abridged retelling of Mahabharat in English. He was deeply religious and a pious person and follower of the Vedas and Upanishads. Richard Casey, the Governor General of Australia, regarded Rajaji as the wisest man in India. The best possible tribute to Rajaji was from Mahatma Gandhi, who referred to him as the keeper of my conscience. Summary of the chapter is this lesson is an extract from the Mahabharata. As children, you know Mahabharata and Ramayana are our scriptures. These are our epics. This lesson is an extract from the Mahabharata. It reflects the character of Yudhishthir, the Dharamraj, his patience, kindness, love for his brothers, and intelligence. He pleased Yaksha by giving satisfactory answer to his questions. The Yaksh was pleased with Yudhishthir's impartiality. The Yaksh was Yam, the lord of death, who had taken the form of Yaksh to see Yudhishthir and taste his knowledge. Being satisfied with his answers, he blessed him and disappeared. Now chapter starts. Yudhishthir waited for his brothers in anxiety and thirst. As children, I told you this chapter is an extract from Mahabharata. There were five brothers. Pandavas were five brothers. Kunti had 3 sons and Madri had 2 sons. Yudhishthir, Arjun and Bhim are the sons of Kunti, and Sahadev and Nakul are the sons of Madri. Yudhishthir waited for his brothers in anxiety and thirst. Anxiety means चिंता. युधिष्ठिर अपने भाइयों का बहुत चिंता से इंतज़ार कर रहा था. युधिष्ठिर was waiting for his brothers in anxiety means Yudhishthir was waiting for his brothers sorrowfully, and he was thirsty also. Can they have been subjected to a curse, or are they still wandering about in the forest in search of water? Here Yudhishthir is questioning to himself that whether his brothers were cursed by somebody, or they are still wandering about in the forest in search of water. Can they have fainted or died of thirst? Here also he is questioning himself. Did they die or fainted of thirst? Unable to bear these thoughts and driven by an overpowering thirst, he gave up waiting and started out to look for his brothers and the pool, hoping that he might find them. Unable to bear these thoughts, Yudhishthir was unable to tolerate these thoughts, and he was driven by an overpowering thirst. Means he was suffering from extreme thirst. He gave up waiting. He left the thought of waiting and started out to look for his brothers, and he again began to search his brothers and the pool, hoping that he might find them. He was expecting that his brothers may be found. Yudhishthir proceeded in direction his brothers had taken and kept on walking through tracts full of wild bear and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clean water. युधिष्ठिर proceeded means आगे बढ़ना. युधिष्ठिर उस दिशा में बढ़े आगे. His brothers had taken, जहाँ पर उनके भाई लोग गए थे, and kept on walking through tracts full of wild bear
tracts in mark. वे युधिष्ठिर उस मार्ग पर चल रहे थे जो कि जंगली जानवरों से भरा हुआ था, एंड स्पॉटेड डियर और चितकबरे हिरन से, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स और बड़े जंगली पक्षियों से, टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो। इन खतरनाक जगह से घूमते हुए, टहलते हुए, रास्ते से टहलते हुए, ही रीच्ड टू अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो। वो एक बहुत ही सुंदर हरे भरे चारागाह के पास पहुँचे। अराउंड अ पूल ऑफ क्लीन वाटर, वह मीडो, उस ग्रासलैंड, अराउंड अ पूल ऑफ क्लीन वाटर, वह ग्रासलैंड एक साफ सुथरे पानी के तालाब के चारों तरफ फैला हुआ था। बट वेन ही सॉ हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके ब्रदर्स वहाँ पर मरे पड़े हैं, लेटे हुए हैं, लाइक फ्लैग पोल्स, जैसे कि झंडे के खंभे हों। अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, ही वॉज अनेबल टू कंट्रोल हिज सॉरो, ही लिफ्टेड हिज वॉइस, उन्होंने तेज आवाज़ में चिल्ला के बोला, एंड वेप्ट, और रोने लगे। ही टच्ड द फेसेज ऑफ भीमा एंड अर्जुन, उन्होंने भीम और अर्जुन का चेहरा छुआ। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, जैसा कि वो लोग एकदम शांत और स्तब्ध लेटे हुए थे। एंड मॉन्ड, और युधिष्ठिर विलाप करने लगे। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर ओज, क्या यही हमारे ओज का, ओ माने प्रतिज्ञा होता है, VOWS, ओ माने प्रतिज्ञा, प्रॉमिस, वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर ओज, क्या हमारी प्रतिज्ञा का यही उद्देश्य था। जस्ट वेन आवर एक्साइल इज़ अबाउट टू एंड, जो ही हमारा एक्साइल माने वनवास, जो ही हमारा वनवास समाप्त होने वाला था, यू हैव बीन टेकन अवे, तुम सब लोग छीन लिए गए मुझसे। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, यहाँ तक कि भगवान ने भी हमें अकेला दुर्भाग्य में, इस दुर्भाग्यपूर्ण जिंदगी में छोड़ दिया है। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स नाउ सो हेल्पलेस, जब उन्होंने देखा कि उनके शक्तिशाली अंग जो थे, नाउ सो हेल्पलेस, बिल्कुल निसहाय दिखाई दे रहे थे, ही सैडली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम। अब वो सोचने लगते हैं, दुखी होकर के सोचने लगते हैं, उनको बहुत आश्चर्य होता है कि वो कौन सी ऐसी ताकतवर चीज़ है, जिन लोगों ने, वो कौन सा ऐसा ताकतवर व्यक्ति है, माइटी पर्सन है, पावरफुल पर्सन है, जिन्होंने मेरे भाइयों को मारा है। देन ही टू डिसेंडेड इनटू द पूल, तब वो स्वयं उस तालाब के पास नीचे उतर आते हैं। ड्रॉन टू द वाटर बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, क्योंकि वो स्वयं बहुत प्यासे थे और उस तालाब के पानी को देख करके वो नीचे स्वयं उतर कर चले आते हैं। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्न्ड हिम, शीघ्र ही जो ही वो तालाब के पास नीचे उतर कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत तेज प्यास लगी हुई थी, तो उसी समय उनको एक आवाज़ सुनाई दी, वार्निंग वाली आवाज़ सुनाई। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्न्ड हिम, विदाउट फॉर्म मतलब जो कि दिखाई नहीं, फॉर्म मीन्स रूप होता है, जिसका कोई रूप नहीं था, जो फॉर्मलेस था बिल्कुल, यानी कोई दिखाई नहीं दे रहा था, बस वार्निंग वाली आवाज़ आती, चेतावनीपूर्ण आवाज़ उनको सुनाई दी। Your brothers died because they did not heed my words, जो आवाज़ उन्हें सुनाई दी थी, वो आवाज़ ये थी कि तुम्हारे भाई लोग यहाँ पर मरे पड़े हैं, क्योंकि उन लोगों ने हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया। हीड माने ध्यान देना होता है। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, उन लोगों ने पानी पीने का प्रयास किया बिना मेरे क्वेश्चन का आंसर दिए हुए। डू नॉट फॉलो देम, तुम उन लोगों का अनुगमन मत करना, तुम उन लोगों का अनुसरण मत करना। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, तुम पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे, उसके बाद तुम अपनी प्यास बुझा सकोगे। क्वेंच योर थर्स्ट का मतलब प्यास बुझाना। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मुझसे संबंधित है, यह तालाब मेरा है।
It did not take Yudhishthir a moment to understand that these could be none other than the words of Yaksh and guessed what had happened to his brothers. युधिष्ठिर को एक क्षण भी नहीं लगा इस बात को समझने में कि ये आवाज़ जो सुनाई पड़ रही है कोई और नहीं हो सकता है बल्कि ये यक्ष की आवाज़ है। और उन्होंने गेस किया व्हाट हैपन टू हिज ब्रदर, और उन्होंने गेस कर लिया था, अनुमान लगा लिया था कि उनके भाइयों को क्या हो गया। इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू द लाइफ। इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। उनको बिल्कुल समय नहीं लगा अपने भाइयों को जीवित करने में। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, जो बॉडीलेस वॉइस वहाँ पर सुनाई पड़ी थी, मतलब कि जो वहाँ पर बॉडीलेस मतलब फॉर्मलेस, जो कोई भी वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था, अदृश्य था, बस आवाज़ सुनाई दे रही थी। उससे उन्होंने पूछा प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन, कि आप कृपया आप क्वेश्चंस पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर। तुरंत उस आवाज़ में क्वेश्चंस एक के बाद एक क्वेश्चंस होने लगा था। व्हाट रेस्क्यू अ मैन इन डेंजर। पहला क्वेश्चन था कि एक इंसान जब खतरे में होता है तो उसे कौन बचाता है। करेज, उसका साहस। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज। किसका अध्ययन करके, किस विज्ञान का अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है। नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान बनता है किसी शास्त्र का अध्ययन करके नहीं। इट इज़ बाई एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। ये बुद्धिमान व्यक्तियों के संगत में आकर के इंसान बुद्धिमान बनता है। द यक्ष आस्क्ड व्हाट इज़ स्विफ्टर दैन द विंड। यक्ष ने पूछा कि वो कौन सी चीज़ है जो हवा से भी तेज होती है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि ये माइंड होता है जो कि हवा से भी तेज चलती है। व्हाट इज़ मोर फेडेड दैन अ ड्राइड स्ट्रॉ। वो कौन सी चीज़ है जो कि सूखी घास से भी ज़्यादा मुरझाई हुई होती है। अ सॉरो स्ट्राइकन हार्ट, एक दुख से द्रवित दिल जो होता है वो सूखी घास से भी ज़्यादा मुरझाई होती है। व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रैवलर। एक यात्री के लिए उसका सबसे अच्छा मित्र क्या हो सकता है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया लर्निंग। यक्ष ने दूसरा क्वेश्चन पूछा हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। एक इंसान जो घर पर ठहरा होता है उसका उस समय सबसे अच्छा दोस्त कौन होता है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि वाइफ। हु एकम्पनीज अ मैन इन डेथ। धर्म। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, यक्ष ने पूछा कि जब इंसान मृत्यु के समय में होता है तो उस समय उसका साथी कौन होता है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया धर्म। दैट अलोन एकम्पनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। धर्म ही एक ऐसी चीज़ होती है जो कि इंसान जब अकेले मृत्यु के पथ पर जाता है तो वही उसका साथ देता है।